Hello everyone. Good morning guys. Welcome back to the channel. Today we are going to learn subject geography, topic 4, structure of the ocean floor. Standard 8 from Maharashtra State Board. Guys, in the first part we were already studied about the various landform. Fine. And also based on this we have seen the few questions and answers. Apart from this, we have learned the proportion of water and the land on the surface. Fine. And we have seen like 71% of the surface is covered by water, and the 29% of the surface is covered by the land. So these things we have seen in the first part. Now today we are going to talk about the relief of the ocean floor. Guys, you will first try to understand the meaning of ocean relief. Ocean relief, it means the landforms under the ocean. Once again, ocean relief, it means the land under the ocean is called the ocean relief. Landforms under the ocean. Fine. Now, after that, regarding the same like ocean relief, we are having a few points which is given on the board. So now please look on the board and try to understand what the things which is given on the board. So come on guys. First subtopic, the relief of ocean floor. Now you need point number 1. Land submerged below oceanic water is called the ocean floor. So I told you at the beginning, guys, the meaning of ocean floor. जो लैंड फॉर्म्स ओशन के अंदर होता है उसको हम ओशन रिलीफ बोलते हैं. फाइन. सो हमारा हम जब ओशन में जाते हैं तो हमें पानी तो फ्लोर फर्स्ट दिखता ही है, बट हमारा जो पैर होता है जब नीचे की तरफ मूव होता है तो हम देखते हैं कि नीचे हमें वो सैंड मिलता है. सो सैंड तो है, दैट इज द पॉइंट, लेकिन अंदर तो हम जमीन ही बोलते हैं ना उसको. So that's why it's given the line or point like land submerged below oceanic water is called the ocean floor. Fine. Second point, we having the depth of the ocean, guys. So it's around 3,700 meters. Let's see what's given here. See here, the average depth of the oceans. Depth. Depth it means like we can say deep or as गहराई. So the average depth of the oceans is around 3,700 meters. Now the next, the ocean bed, it means the ocean relief. Ocean bed is uneven like the land on the continents. So guys, why it's given like the ocean's bed is of uneven? See guys, whenever, see, we all were already visited the beach and all for the enjoyment, है ना. Just think like कि हम लोग enjoyment के लिए visit किए हैं कभी ना कभी beach, ठीक है. So हम जब भी अंदर जाते हैं so we will easily find out like कि हमारा जो first level होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, और जब हम slowly when we were going inside the ocean और inside the beach, मतलब जब मैंने beach बताया तो beach के नाम लेती हूँ मैं, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं सो वी वर फाइंडिंग आउट कि हमारा जो लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डीप होते जाता है. सो इट मीन्स दैट्स व्हाई इट्स गिवन द पॉइंट लाइक कि द ओशन बेड्स इज अनइवन. इट मीन्स इसका जो बेड होता है, मतलब इसका जो लेवल होता है ना, वो सब जगह पे सेम नहीं होता है. आइदर यू कैन इजिली से इनसाइड द वाटर और इज आउटसाइड द वाटर. आई एम गिविंग, जस्ट इमेजिन, क्या हमारा जमीन का सरफेस हर एक जगह पे इक्वल होता है, सेम होता है लेयर? नहीं, है ना. सो वैसे ही हमारे ओशन में भी होता है कि हमारा जो लेयर्स होता है या जो हमारा जो लैंड होता है नीचे का, वो हर एक जगह पे सेम नहीं होता है. डन. फाइन. सो वंस अगेन द सेम पॉइंट, द ओशन बेड इज अनइवन लाइक द लैंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स. हम जब भी बीच पे जाते हैं सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब हम पानी में एंटर होने जाते हैं सो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमारा जो पानी होता है वो सिर्फ पैर तक आता है, बट हम जब अंदर धीरे धीरे जाएंगे सो हमें ऐसा लगेगा कि हम थोड़े अंदर जा रहे हैं, मतलब गहराई में जा रहे हैं, गहराई में. सो फर्स्ट पार्ट तो आपका लगेगा कि हम ऊपर ही है, बट जब धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव हो गए तो हमें पता चलेगा कि हम
अंदर की तरफ, गहराई की तरफ मूव हो रहे हैं। सो क्या होगा, ये लैंड जो है अनइवन है। अगर वो बराबर रहता सो हम पानी के अंदर डूबते ही नहीं, बट हम अंदर अंदर जितने अंदर जाएंगे तो अपने को गहराई पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीन ऑफ टू वर्ड, वन इज जेंटल एंड द सेकेंड वन इज स्टीपर। Try to understand the mean of gentle and the steeper. Gentle क्या होता है और steeper क्या होता है। Gentle से गहरा बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, बट जो steeper होता है we can say it's of गहराई और हम बोल सकते हैं ढलान। Fine, steeper मतलब comparing to the gentle, steeper गहरा होता है, और gentle उतना गहरा नहीं होता जितना steeper होता है। Done? Okay. Now regarding the same, we having the image on it, right? इससे related हमारे पास image है, so we'll study with the help of the image. हम इस topic को study करेंगे image की मदद से. Fine. So see guys, हम जब image की से study करें उससे पहले हम सब point देख लेते हैं. So see here we having the sub point. One is continental shelf. Now what the mean of continental shelf? क्या है ये continental shelf? See guys, continental shelf it means near to the coast and below the ocean or below the water. मतलब coast, see coast किसको बोलते हैं? जो पानी से नजदीक होता है. Done? So coast से नजदीक और कुछ land पानी के अंदर, उसको हम बोलते हैं continental shelf. Done? Now move to the next one. कॉन्टिनेंटल स्लोप. व्हाट इज स्लोप? सी स्लोप का मतलब ही आपको पता चल रहा है कि गहराई, थोड़ा सा स्लोपिंग, राइट? सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद वाला जो प्लेन, सी हमने क्या बोला कि लाइक ये हमारा कोस्ट है, लैंड जमीन है, ठीक है। अब इसके बाद से ये पानी आ गया आपका। सो कुछ जमीन है जो यहाँ पे है, ये आपका लैंड है, ये पानी है, ठीक है। इसके नीचे भी अपना जमीन ही होता है, राइट? ये जमीन होता है। सो इस पार्ट को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। बट जब ये स्लोप में जाता है, सो दिस वन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। फाइन। अब उसके नीचे आता है अबेसियल प्लेन। अबेसियल प्लेन आपको एक फ्लैट टाइप का दिखेगा, फ्लैट, उसको हम बोलते हैं अबेसियल प्लेन, है ना। नेक्स्ट इज माउंटेन्स, माउंटेन रेंज एंड प्लेट्यूज। सी माउंटेन रेंज आप जब देखोगे अपने फ्लोर में, सी गाइस वहाँ पे आपको ओशन फ्लोर, वहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट लैंडफॉर्म दिखाई देंगे। उसमें कुछ ऐसे माउंटेन होंगे जो अंदर ही छुपा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ दिख जाता है। फाइन। प्लेट्यूज। नेक्स्ट इज मराइन डीप एंड द मराइन रेंजेस। Fine. So these are the subtopics we have. Now we are going to see resolve with the help of the images. Now guys, come to the images. Let's start. Now look here, the image of ocean relief. Fine. This one is the image of ocean relief. Now let's start the first subtopic, which is already given on the board. क्या था पहला? Continental shelf. मैंने क्या बताया आपको? Continental shelf किसको बोलते हैं? कोस्ट के नियर में और पानी के कुछ अंदर पार्ट को इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो सी हियर इट्स गिवन इट। सी ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये कोस्ट दिख रहा है आपको, कोस्ट है, एंड सी दिस वन इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कैन यू यूज सी गाइस? ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा होगा, ये आपका सी लेवल है, सी लेवल है। फाइन। सो द लैंड, ये दिख रहा है, द लैंड नियर द कोस्ट एंड सबमर्ज अंडर द सी इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, है ना। And this is the shallowest part of the ocean shelf. Very good, है ना। Ocean bed we can say, and it is also called the submerged coastline, and it's of gentle slope. मैंने क्या बोला आपको? मैंने स्टार्टिंग में बताया था gentle, the mean of gentle and the steeper, है ना। स्टीपर ज़्यादा गहरा होता है और जो जेंटल होता है वो कम होता है, ठीक है। सो ये क्या है? जेंटल है। फाइन गाइस, इसकी जो डेप्थ होती है ना, इट्स द डेप्थ इज ऑफ अप टू 200 मीटर्स बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल। फाइन। अब से यहाँ पे आप देखोगे ना गाइस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आपको तो ज़्यादातर फिशिंग होता है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो पार्ट पे हम बोल सकते हैं लाइक फिशिंग होता है, फिशिंग ग्राउंड ज़्यादा होता है यहाँ पे, फिशिंग। यू नो व्हाट, क्यों और किस लिए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, लाइक कि दिस पार्ट इज दिस शैलो एंड द सनलाइट रीचेस इट्स बेड, है ना।
एंड ऑल्सो लाइक प्लैंकटन, हम नाम सुने होंगे, एल्गे एक्सेट्रा ग्रो हियर. सो सी प्लैंकटन एंड द एल्गे दीज आर द फूड फॉर द फिश, है ना. ये क्या है, मछलियों का खाना है. ठीक है. सो अब यहाँ पे अगर जो चीज़ें मिले, सी हमें जहाँ पे जो चीज़ मिलती है सो हम वहाँ पे जाते हैं. सो यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे मिलने की वजह से फिश क्या होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं. सो यहाँ पे फिशिंग ज़्यादा होता है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप. हमने ये देखा था. सी इसके बाद हमने क्या देखा था, कॉन्टिनेंटल स्लोप देखा था. सी मैंने क्या बताया था आपको, कॉन्टिनेंटल स्लोप. स्लोप का मतलब ही क्या है. सो आपको दिख रहा है, ये स्लोप दिख रहा है आपको, ये आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप है. ठीक है. दिस वन इज ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप. सो द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज over shelf is over the slope of the sea bed becomes steeper. See, I have already given you the word of steeper. So ये आपका steeper दिख रहा है, गहराई दिख रहा है, ढलान दिख रहा है आपको, ढलान दिख रहा है ऊपर से नीचे. is known as the steeper. And the depth of the slope is from 200 meter to 3600 meters. See, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमने कितना देखा था, अप टू 200 मीटर्स. बट हियर वी हैविंग द डिफरेंस. यहाँ पे कितना है, फ्रॉम 200 to 3600 मीटर्स. ये इतना स्टीपर. सो कंपेयरिंग टू दिस शेल्फ आई थिंक स्लोप इज टू हाई, है ना. इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा गहरा है. फाइन. एंड दिस वन द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज ऑफ नैरो. बहुत छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा है. अब दिख रहा है यहाँ से यहाँ होते हुए, मतलब ये इमेज दिख रहा है, लेकिन फिर भी इमेजिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, नैरो टाइप का होता है. फाइन. जस्ट लाइक ऑफ बाउंड्री. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंटल स्लोप, नाउ द नेक्स्ट हमने उसके बाद क्या देखा था, अबेसल प्लेन. राइट. अबेसल प्लेन देखा था. तो सी गाइस, सी बिलो दिस वी हैविंग द अबेसल प्लेन. कैन यू एबल टू सी गाइस? हाँ, वेरी गुड. सी अबेसल प्लेन. So see, abyssal plane क्या होता है? It's beyond the continental slope lies the abyssal plane, which are of just like a flat. मैंने क्या बताया था आपको, ये फ्लैट जैसा दिख रहा है. So see आपको दिख रहा है, ये पूरा फ्लैट जैसा दिख रहा है ना. So this one is of abyssal plane, है ना. ये फ्लैट पार्ट होता है सी बेड में. and the abyssal plane consists of the various submerged, मिक्स हुआ, सबमर्ज लैंडफॉर्म्स, अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपको इसमें दिखेंगे. मे बी कभी आपको हिल्स भी मिल जाएगा, कहीं आपको प्लेट्यू भी देखने मिल जाएगा. राइट. सो दिस आर नोन एज द अबेसल प्लेन. फाइन. नाउ और क्या देखा था हमने, नेक्स्ट इज ऑफ माउंटेनियस रेंज एंड प्लेट्यूज. फाइन. आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहा होगा, कोई मराइन आइलैंड दिखा होगा, कोई मिड ओशनिक रिज दिखा होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस वी हैविंग द मेनी मोर इमेजेस रिगार्डिंग द माउंटेनियस रेंजेस एंड द प्लेट्यूज. सो हम लोग उस इमेज से स्टडी करेंगे इसके माउंटेनियस रेंज एंड प्लेट्यू का. फाइन. इमेज वी हैविंग वन मोर इमेज वी हैविंग ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. सी ये है आपका इमेज. सी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका. दिस वन इज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट कोस्ट से नियर होगा और कुछ पार्ट पानी के अंदर होगा. सो दिस वन इज ऑफ योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ. अब इसके बिलो नीचे, मतलब हमने क्या देखा था, ढलान. सो कॉन्टिनेंटल स्लोप देख लो आप, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है. एक और है कॉन्टिनेंटल अराइज. इट मीन्स यहाँ से कुछ पार्ट आपका आगे बढ़ता हुआ दिख रहा होगा. सी मैंने रेड कलर से किया है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है. इज ऑफ कॉन्टिनेंटल राइस. हमने लास्ट क्या देखा था, अबेसल प्लेन. सो सी ये आपका अबेसल प्लेन है. अब बिलो दिस ये आपको ओशनिक क्रस्ट दिख रहा होगा. दिस वन इज ऑफ ओशनिक क्रस्ट. फाइन. सो अभी हमें क्या स्टार्ट करना था, माउंटेनियस रेंज एंड दी प्लेट्यू स्टार्ट करना था. फाइन. So here we having the mountainous range and the plateaus. See here the hills and see here ये जो hills है and the mountainous found on the ocean board, है ना, ओशन बेड बोल सकते हैं, आर कॉल्ड दी सबमर्ज हिल्स एंड दी माउंटेनियस. सी है गाइस, ये आपका सी लेवल है, दिख रहा है आपका, ये पानी दिख रहा है, ये पानी है ब्लू कलर का. और ये जो नीचे है ना, ये सी गाइस नीचे भी हमारा लैंडफॉर्म होता है. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि नीचे भी हमारा लैंडफॉर्म होता है. सो ये पानी के अंदर हो रहा है ना, पानी के अंदर है. सो दैट्स वाई गिवन द लाइन लाइक कि ऑन द ओशन बेड आर कॉल्ड दी सबमर्ज हिल्स एंड दी माउंटेनियस. And these hills are 100 of kilometers wide and 1000 of kilometers long, है ना. मे बी ये
इतना वाइड और इतना ब्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। सो सम पिक्स ऑफ द सबमर्ज हिल्स लाइक कम अबव द सी लेवल, कैन यू एबल टू सी गाइस, सी हियर, कुछ ऐसे पिक होते हैं जो पानी से ऊपर आ जाता है। देखिए इस इमेज में, देखिए सी हियर पानी से ऊपर आया है। सो दिस इमेज इज नोन एज द मराइन आइलैंड। ये इमेज को हम क्या बोलते हैं, मराइन। कुछ ऐसे होते हैं कि जो पानी से ऊपर आ जाते हैं। अब लैंडफॉर्म तो होता ही जाता है, ठीक है। सो दे आर विजिबल टू अस एज मराइन आइलैंड, लाइक द आइसलैंड इन द अटलांटिक ओशन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। हाँ, ऐसे कुछ आइलैंड हमारे पास भी है ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। सो उसका नाम बताया मैंने आपको, एक तो अटलांटिक ओशन में है एंड आइसलैंड जो अटलांटिक ओशन में है, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये इस तरीके, इसको क्या बोलते हैं, मराइन आइलैंड बोलते हैं। फाइन, ये आपको दिख रहा है जो मैंने आपको नाम बताया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, सी है, जो बंगाल में हमारा बे ऑफ बंगाल में सी है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना, इस तरीके से। एंड जो मैंने अटलांटिक का नाम बताया आइसलैंड का, सी है, ये दिख रहा है पानी के किनारे वाला दिख रहा है, ये सब है ना। सो कुछ ही इस तरीके से लैंडफॉर्म हो जाता है। फाइन, कुछ इस तरीके से लैंडफॉर्म हो जाता है। सो नेक्स्ट इमेज वी हैविंग ऑफ द सेम, सी है। और मैंने क्या बताया आपको, ओशनिक और दी सबमरीन प्लेट्यू। अभी ओशनिक एंड दी सबमरीन प्लेट्यू जो है वो किसको बोलते हैं हम लोग, चाहिए गाइस, कुछ ऐसे फ्लैट भी दिखते हैं, चाहिए कुछ फ्लैट दिखते हैं। इट मीन्स सम मरीन आइलैंड्स आर फ्लैट इन एक्सटेंसिव एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ओशनिक और दी सबमरीन प्लेट्यूज। फाइन, कुछ फ्लैट जैसा दिख रहा है आपको, आसपास में पूरा पानी है और बीच में कुछ फ्लैट जैसा बना हुआ है। सो दिस आर नोन एज दी सबमरीन प्लेट्यूज। फाइन, सो सी गाइस, मेनी टाइम्स हम बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ चाओस और प्लेट्यू है हमारे इंडियन ओशन में भी बना हुआ है, इसी तरीके से कुछ बना है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ मराइन डीप एंड मराइन ट्रेंचेस। सो व्हाट इज मराइन डीप, कैसा दिखता है, क्या है ये मराइन ट्रेंचेस। Fine. So see, we are having the next images of the marine deep and or the marine trenches. See, here we are having the subtopic which is given here. See, marine deep and marine trenches. Fine. So see guys, अभी ये marine deep और marine trenches होता क्या है, तो हमने अबेजल तल का तो हमने इमेज देख लिया था, right? Okay. After that we have seen the also the images of submarine plateaus. ओशन का, जब भी मैंने बताया आपको कुछ फ्लैट है जो आइलैंड के बीच में पानी के बीच में बन जाता है, जिसको हम आइलैंड बोलते हैं, वो भी हमने देख लिया। ये हमारा मराइन डीप है। किसको बोलते हैं मराइन, सी आपको सर्कल दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है ना। सो द ओशन बेड देयर आर दी सम लैंडफॉर्म्स विच आर डीप, है ना, विच आर डीप और नैरो एंड स्टिक्स। सो दे आर कॉल्ड दी मराइन डीप और दी ट्रेंचेस। वंस अगेन गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, सम लैंडफॉर्म्स विच आर deep, narrow and steep and they are called the marine deep or the marine trenches. Done? Okay, very good. Now next, see shallower दिख रहा है आपको, the shallower ones are called the marine deeps. The shallower ones are called the marine deeps, while the deeper ones and extending longer distance are called the trenches. दिख रहा है, गहराई वाला दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं। दिस आर नोन एज दी ट्रेंचेस। और सी गाइस, कभी कभी इस ट्रेंच की जो गहराई होती है ना 1000 मीटर्स तक डीप हो जाती है सी लेवल का। सी यहाँ पे दिया, सी दिस वन इज ऑफ मराइन डीप, ये दिख रहा है मराइन डीप, और उससे गहरा जो है वो ट्रेंचेस, इसको ट्रेंचेस बोलते हैं। दिस वन इज नोन एज दी ट्रेंचेस। ये आपका मराइन डीप है, बट इससे भी गहरा मराइन ट्रेंचेस आपको दिख रहा है, कुछ वी शेप का दिख रहा है ना। सो दिस वन इज ऑफ ट्रेंचेस। मैंने क्या बताया, कभी कभी 1000 मीटर तक हो जाता है ना, ठीक। सो सी आपको ये रेड कलर का एरो दिख रहा है, ये पूरी गहराई तक गया है। सो इट मीन्स इससे मैंने क्या बोला, थाउजेंड्स में, सी ऑलरेडी गिवन हियर बिलो दिस, द ट्रेंचेस आर थाउजेंड्स ऑफ मीटर डीप फ्रॉम दी सी लेवल। ये सी लेवल से इसकी जो गहराई हो कितना तक बता रहा है, सो 1000 मीटर डीप। कैन यू इमेजिन गाइस, 1000 मीटर का डीप होता है ये ऑलमोस्ट, है ना। सो द मराइन ट्रेंचेस इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंचेस इन द वर्ल्ड। सो सी वन मोर इमेजेस वी हैविंग ऑफ 6 वर्ल्ड की बात किया ना। सो सी मराइन, है ना, मराइन ट्रेंचेस। सी वर्ल्ड की बात किया तो वर्ल्ड है, ये आपका वर्ल्ड है, ये मैप, ये मराइन ट्रेंचेस है। इसका मीटर्स देखिए कितना, मतलब ये हाईएस्ट बताया है, हाईएस्ट है, अपने वर्ल्ड का हाईएस्ट बता रहा है। सो इज द डीपेस्ट ट्रेंचेस इन द वर्ल्ड, इट्स डेप्थ इज अराउंड
See here 11,034 meters. Can you able to see guys? ये कितना गहरा बता रहा है. So इसके लिए तो लाइन यूज किया. That's why I have used line like कि it's the like the world highest का बात किया मैंने. So marine trenches in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world and having the meters of 11,034 meters. ठीक है, ये सबसे डीपेस्ट है. एंड द मिड ओशियंस submerged hills and marine trenches are the geographically the most active areas of the ocean bed in the world. See here, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है mid oceanic submerged hill, this one, and the marine trenches is this one. So see here it's given the line, the mid oceanic submerged hills and the marine trenches, this and this are the geographically the most active areas of the ocean bed in the world. ठीक है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं. और वोल्केनिक वगैरह जो यहाँ पे एक्टिव होता है, ठीक है, वोल्केनिक वगैरह यहाँ पे एक्टिव होता है. और एल्स द आर आल्सो द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. सो अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस अकोरिंग इन द ओशंस बेड. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे होता है. सो सुनामी अराइज होता है. सी ये ऐसा कुछ होता है मराइन डिप का. सी मैंने क्या बताया आपको, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज ना. सी ये अंडरग्राउंड में बता रहा है, नीचे की तरफ बता रहे हैं कि ऐसा ओशन बेड में होता है. सो इसकी वजह से कुछ सुनामी जो है अपने को नियर बाय कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये इनर का पार्ट है. सी ओशन बेड के, ये ओशन बेड नियर मतलब नियर मीन्स अंदर का ये आपको इमेज बता रही हूँ मैं आपको, ये अंदर का इमेज है. सो इसकी वजह से सुनामी वगैरह जो अपने को ऊपर दिखाई देता है. ठीक है, और इनर पे कुछ मैंने आपको क्या बताया कि वोल्केनिक भी वहाँ पे एक्टिव है, जो मैंने ओशन बेड का नाम लिया. तो वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिव भी है. ठीक है, सो सी आप सुनामी वगैरह आएगा तो आपको पता है कि जो आसपास के एरिया है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा ही, है ना. सो सी हियर लाइन्स गिवन, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन अकॉरिंग इन द ओशन बेड गिव राइज टू द सुनामी इन द नियर बाय कोस्टल एरिया. सी हियर आसपास के जो एरिया है, सो वहाँ पे सी अब आसपास के एरिया है तो वहाँ पे पब्लिक तो रहेंगे, राइट. सो अगर वहाँ पे ऐसा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सुनामी वगैरह आएगी. आपको याद होगा 2005 में हमारे यहाँ पे मुंबई में भी सुनामी आया था. सो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, सो यू कैन इजली इमेजिन. सो यहाँ पे अगर सुनामी हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, राइट. सो ओके, सो टिल हियर वी हैव सीन दी मराइन डिप्स एंड दी मराइन ट्रेंचेस. फाइन, यहाँ तक हमने देख लिया मराइन डिप एंड मराइन ट्रेंचेस. नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. So guys, in this way we have seen the relief of the ocean floor. ठीक है, हमने इस तरीके से with the help of the images we have seen the continental shelf, continental slope, as well as the Amazon, Mount ranges, और the last one is marine ranges. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब देखा. And the last one is of your homework. So please note down your homework guys. See, before writing down the homework, guys, if you are having the doubt related to this, so you can answer it. Now you will please note down your homework. Question number 1. The continental slope is considered to be the boundary of continents. Give reason. ठीक है, तो see guys, बाउंड्री मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो बाउंड्री जैसा है. कॉन्टिनेंटल स्लोप एक बाउंड्री जैसा ही दिखता है, राइट. सो आपको इस रीजन बताना है. तो सी गाइस, दिस आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज मैंने आप बोर्ड पे तो लिखा नहीं है पॉइंट, तो आपको टेक्स्ट बुक से ही आंसर लिखना है. सो यू विल लुक हियर, इट्स गिवन इन पेज नंबर 25. पेज नंबर 25. सी हियर द सब टॉपिक continental slope. So copy down from here guys. After the extend to the last line, continents, boundary of continents. Fine. See guys, while you are writing the answer, give it point or else write point wise. ठीक है, आप जब आंसर लिखोगे तो पॉइंट वाइज लिखना है. फाइन, डन. सो कॉपी डाउन द क्वेश्चन, complete your homework, study well, watch the video again and again to understand the concept. डाउट है तो मैंने आपको बताया क्या करना है. ठीक है, आगे के पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच.